Okay, so from today we are going to start questions on prism theory, dispersion, wave optics, so on and so forth. Question 33. When light rays are incident on a prism at an angle 45 degree, the minimum deviation is obtained. If refractive index of material of prism is √2, then the angle of prism will be. So as you know, prism has ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, आपको पता है ये प्रिज्म है, 3 रेक्टेंगुलर साइड्स होते हैं. So there are 3 rectangular sides. If you don't know, I will just show it to you. The prism is something like this. नीचे का एक रेक्टेंगुलर फेस, ये एक फेस, ये एक फेस और ये एक फेस, 3 रेक्टेंगुलर साइड्स, 2 ट्रायंगुलर साइड्स फ्रंट एंड बैक. ओके, और ये जो साइड फेसेस है, दिस साइड फेसेस आर रिफ्रैक्टिंग फेसेस, ये और ये रिफ्रैक्टिंग फेस है. तो रिफ्रैक्टिंग फेस जहां ज्वाइन होता है उस लाइन को बोलते हैं एज ऑफ द प्रिज्म. ओके, तो जब हम प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम सिर्फ उसको एक साइड से देख रहे हैं. वी आर लुकिंग फ्रॉम फ्रंट ऑफ द प्रिज्म, तो वी विल सी जस्ट द फ्रंट फेस. तो ये जो एंगल बनता है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म. अभी आपको बोला है light rays are incident on a prism at an angle of 45 degree. So ray of light is coming something like this. It is making angle 45 और angle हमेशा normal के साथ measure होता है. And obviously you should know one thing is that minimum deviation condition में जो ये refracted beam है वो बेस को पैरेलल जाता है. So this red ray is parallel to the base of prism and then it goes like this again. So there are few things that you should know. Let us say this is A, B, C. This is ray. Ray incident होगा 45 degree पे, angle of incidence is 45. Because the ray is traveling from rarer to denser medium, it bends towards normal. तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया. फिर यहाँ पे at this point, let us say N point, जो भी नाम दो आप, it is going from denser to rarer, it bends away from normal. ये हो गया angle of emergence E. Okay, under minimum deviation condition, you have this ray, whatever name you have given to this, Mn, it is parallel to BC. और minimum deviation में R1 equal to R2 equal to A/2 आता है. This is something you should know. अब अगर मैं AB इस साइड पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू is equal to sine of angle of incidence upon sine of R1. अगर ऐसा नहीं आपको समझ में आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 which is equal to म्यू, और ये एयर है तो μ1 is equal to 1. तो आप बोलोगे μ1 sin I equal to μ2 sin R. therefore μ1 is 1 of course, तो sin I और ये R1 था upon sin R1 equal to म्यू. Refractive index of medium 1 into sine of angle in medium 1, refractive index of medium 2 into sine of angle in medium 2. This is Snell's law. आप Snell's law apply करोगे तो you will get, therefore mu is equal to sine I, angle of incidence कितना है 45 degree, upon R1 is A/2. ओके, आपको A/2 कहाँ से आया, वो मिनिमम डेविएशन कंडीशन से आता है. म्यू आपको √2 दिया है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन ऑफ A/2.
तो आपको यहाँ से मिल जाएगा साइन ऑफ a/2 इज इक्वल टू 1/√2 इंटू √2 इज 1/2। मतलब आपको ये बताना चाहिए साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, तो यू कैन से a/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ हाफ दैट इज 30 डिग्री। तो a/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब a इक्वल टू 60 डिग्री। तो a की वैल्यू 60 आ गई आपके पास, ऑप्शन नंबर डी। तो यू नीड टू नो बेसिक्स, स्नेल्स लॉ, प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन कंडीशन क्या होती है। मिनिमम डेविएशन कंडीशन मतलब ये जो रिफ्रैक्टेड बीम है ये पैरेलल होता है, पैरेलल टू द बेस BC। ओके राइट, तो क्वेश्चन इजी था, नॉट रियली डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ये अभी आप याद रख लो, जब भी मिनिमम 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 ऐसा वर्ड आएगा तो मैं आपको कंडीशन लिख के दे ही देता हूं। तो आपने देखा अंडर मिनिमम डेविएशन, अंडर मिनिमम डेविएशन क्या होता है। अंडर मिनिमम डेविएशन, नंबर 1, रिफ्रैक्टेड रे is parallel to base, refracted ray is parallel to base of prism। दूसरा R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R इक्वल टू a/2। तीसरा I angle of incidence is a plus delta m/2। So angle of minimum deviation for a prism of refractive index 1.5, तो refractive index 1.5 बोला है, is equal to angle of prism। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब डेल्टा m इक्वल टू a। अब जिनको डेविएशन एंगल ही नहीं पता उसके लिए, इफ यू डोंट नो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन एंड व्हाट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, आई विल टेल यू व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। देखो आइडियली इमेजिन करो कि आपके पास प्रिज्म था ही नहीं। ओके, इमेजिन देयर वाज नो प्रिज्म, प्रिज्म नहीं होता तो इन दैट केस ये जो रे है ये रे सीधा ऐसा निकल जाता, राइट। अगर मैं, मतलब ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करता हूं और अगर मैं सेकेंड साइड से रे को अंदर भेजता हूं तो सेकेंड साइड से रे सेम पाथ फॉलो करेगा, राइट। अब मानो कि प्रिज्म था ही नहीं, तो जब प्रिज्म नहीं था तो सेकेंड साइड से भी जब रे जाएगा तो वो ऐसा जाएगा। ओके, देयर आर टू वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेम थिंग। एक, ये इंसिडेंट डायरेक्शन है, ये एमर्जेंट डायरेक्शन है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड एमर्जेंट डायरेक्शन इज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन आपको ये बताता है कि कितने एंगल से रे ऑफ लाइट बेंड हुआ बिकॉज ऑफ प्रिज्म, by how much angle the path of ray has changed due to prism, that is angle between original or incident direction and the emergent direction, that is angle of deviation। ओके, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब होता क्या है, जब आप एक ग्राफ प्लॉट करते हो, you plot a graph, you plot a graph of angle of deviation delta against I, या फिर यहाँ पे आप दूसरे भी पैरामीटर प्लॉट कर सकते हो, यू कैन प्लॉट डिफरेंट पैरामीटर्स। तो पहले ये एंगल विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा फिर बढ़ेगा, मतलब एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू पहले कम होती है, मिनिमम पे पहुंचती है, फिर बढ़ने लगती है। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, और ये मिनिमम डेविएशन पे ये सारे चीजें हो रही है। All this is happening at angle of minimum deviation. So now हमको पूछा है एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है।
तो वापस आप प्रिज्म फॉर्मूला यूज करोगे. प्रिज्म फॉर्मूला इज म्यू साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ R1. हमने अभी भी देखा था म्यू इक्वल टू साइन ऑफ आई, बट आई इज a प्लस डेल्टा m by 2 अपॉन साइन ऑफ R1 is a by 2. Therefore this is root 2 साइन ऑफ, बट a और डेल्टा m इक्वल बोला है तो a प्लस a बाई 2, क्योंकि डेल्टा m की वैल्यू a दी है, अपॉन साइन ऑफ a बाई 2. Therefore you have root 2 is equal to sine of 2a by 2 upon sine of a by 2. Therefore you will have root 2 is equal to sine of a upon sine of a by 2. अब आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखा होगा, साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. देयरफॉर यू विल हैव साइन ए. अभी यहाँ पे डबल एंगल है तो यहाँ पे उसका हाफ है, तो साइन ऑफ ए 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए बाई 2 लिख सकते हो आप. देयरफॉर यू कैन राइट रूट 2 इज इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 into cos a by 2 upon sin a by 2. कैंसल. तो आपको मिलेगा रूट 2 इक्वल टू 2 cos ऑफ a by 2. ओके, मतलब ये आ जाएगा आपके पास ओवरऑल रूट 2 by 2 is 1 by रूट 2 इक्वल टू cos of a by 2. Okay, so let us just check if at all we have done anything incorrect. So doesn't look like, looks like अच्छा हाँ, सिर्फ रूट वैल्यू 1.5 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, so that is okay. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 1.5 है यहाँ पे. ओके, तो ये वैल्यू 1.5 है तो यहाँ पे चेंज होगा. ओके, तो 1.5 by 2 is 0.75 cos of a by 2. लेकिन गिवन में 0.75 इक्वल टू cos of 41 बोला है, तो आप बोल सकते हो therefore cos of 41 डिग्री इक्वल टू cos of a by 2. मतलब a by 2 इक्वल टू 41 डिग्री, therefore a इक्वल टू 82 डिग्री. आ गया आंसर ऑप्शन नंबर सी. This is how you are supposed to solve such questions. ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना आना चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली सिंपल. ओके, बहुत सिंपल है, आपको आने चाहिए क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60, मतलब a इक्वल टू 60 डिग्री. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज 1.414. म्यू की वैल्यू बाय द वे अंडर रूट ऑफ 2 होता है, ये बताना चाहिए आपको. दिस इज अंडर रूट ऑफ 2. देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट रे पास सिमेट्रिकली थ्रू प्रिज्म. दिस इज वन एंड द सेम थिंग. रे पासिंग सिमेट्रिकली थ्रू प्रिज्म मतलब मिनिमम डेविएशन कंडीशन, ये आपको पता होना चाहिए. देखो, एक ही चीज को वो अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं. वो ये भी बोल सकते हैं द रे passes such that the two angles inside the prism are equal, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 इक्वल टू R2, ऐसा भी बोल सकते हैं. वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं. वो ऐसा भी बोल सकते हैं दैट द रे पास सिमेट्रिकली, मतलब सारे के सारे केसेस में दे आर ट्राइंग टू टेल यू ये मिनिमम डेविएशन कंडीशन है. मतलब आपको जो मैंने अभी अभी लिख के दिया था, ये कंडीशंस आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इनडायरेक्टली, राइट? इनडायरेक्टली दे आर ट्राइंग टू टेल यू दिस. ओके, तो अब यू आर सपोज टू फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन R1. ओके, right? Therefore mu equal to sin I upon R1 is a by 2.
Okay, therefore रूट टू या फिर 1.414 जो लिखना हो वो sin I upon sin of A, that is 60/2, that is sin 30. Therefore √2 sin I, and you know that sin 30 is 1/2. 1/2 है, so therefore you will get this as √2 equal to 2 sin I. मतलब ये आपके पास आएगा 1/√2 इक्वल टू साइन I. 1/√2 साइन की वैल्यू कब होती है 45 पे, तो I इक्वल टू 45 डिग्री. ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन खत्म. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बहुत इजी क्वेश्चन है, और मोस्टली प्रिज्म पे अगर क्वेश्चन आया तो प्रिज्म पे मोस्टली क्वेश्चन मिनिमम डेविएशन के केस में ही आता है. मोस्टली, आई एम सेइंग मोस्टली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A ray of light is incident on a face of equilateral triangular prism at an incident angle 40 degrees. A ray of light is incident on a face of equilateral triangular prism. ये बहुत important है. Equilateral triangular prism का मतलब ये होता है कि each angle of this prism is 60 degree. मतलब angle of prism A is also 60 degree. तो जब ट्रायंगुलर प्रिज्म बोला होगा तो हर एक एंगल 60 है, मतलब ए भी 60 है, एंगल ऑफ प्रिज्म भी 60 है. ओके, एंड देन रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 40 डिग्रीज. so there is a ray of light which is incident over here at 40 degree. Okay, so this angle over here is 40 degree. Angle of incidence is 40 degrees. At this angle minimum deviation occurs. The value of this deviation is, okay, now they are asking you what is delta m. अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था I is equal to a plus delta m/2 ऐसा आता है. ये कैसे डिराइव होता है ये भी आपको पता होना चाहिए. दैट इज व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू थ्योरी. तो मैं बता देता हूँ कि ये होता कैसे है. नाउ इफ यू रिमेंबर, मैंने अभी अभी आपको बताया कि मिनिमम डेविएशन कंडीशन में ये जो रे है इट गोस पैरेलल. सो आई हैव टू चेंज दिस लिटिल बिट. ऐसा रे आया, then the ray will exit something like this. ऐसा बाहर जाएगा. तो overall ray, this is angle of incidence है, this is R1, this is R2, this is angle of emergence E. What actually happens is I plus E is equal to A plus delta. ये फॉर्मूला आप प्रिज्म के केस में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो. ओके, मिनिमम डेविएशन हो या नहीं हो, मैं मिनिमम डेविएशन एंगल दिखाई देता हूं फॉर योर कन्वीनियंस. तो बेसिकली किसी भी प्रिज्म के लिए यू कैन ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला I plus E equal to A plus डेल्टा. मैंने डेल्टा क्यों लिखा है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला है. ये पर्टिकुलरली मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में ही अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. यू कैन अप्लाई दिस फॉर एनी केस ऑफ प्रिज्म. अब एट मिनिमम डेविएशन होता क्या है? For minimum deviation, you can write down I plus E is equal to A
plus delta m, minimum deviation. Okay, therefore delta m is equal to I plus E minus A. Okay, देखो I could have used directly formula, मैं बोल सकता था I is equal to A plus delta m by 2, तो फिर delta m is equal to 2i minus A. Yes, मैं वही करने वाला हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो देखो ऐसा है कि जब मिनिमम डेविएशन कंडीशन में ये रे एम एन ये जब बेस को पैरेलल हो गया तो फिर आपको मिला R1 इक्वल टू R2, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अगर ये एंगल्स इक्वल है तो इंसिडेंट एंगल और एमर्जेंट एंगल भी इक्वल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल ऑफ कोर्स, तो यू शुड नो दिस। तो अब आप बोलोगे I प्लस ई माइनस I प्लस आई माइनस ए, मतलब 2i माइनस ए आ गया वहां पे। यस, क्यों किया ऐसा हमने इसलिए किया सिंस I इक्वल टू ई एट मिनिमम डेविएशन, एट मिनिमम डेविएशन। अभी हमको पता है 2i माइनस ए, I पता है 40 डिग्री माइनस ए 60, 80 माइनस 60 इज 20 आ गया आंसर। आई डोंट वांट यू टू यूज दिस, आपको डायरेक्टली ऐसा सॉल्व करना है। आप सीधा यहाँ से स्टार्ट करोगे I इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 फॉर मिनिमम डेविएशन, I इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, डेल्टा एम इज 2i माइनस ए, तो 2 into 40 माइनस 60 दैट इज 20 आ गया। सीधा इतना ही आपको सॉल्व करना है। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आप ये फॉर्मूला जनरल केस है, यू कैन अप्लाई फॉर प्रिज्म इररिस्पेक्टिव ऑफ मिनिमम डेविएशन, आप उसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ मिनिमम डेविएशन में होता क्या है, I और E इक्वल हो जाते हैं, दैट्स इट। सो यू शुड नो दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a prism of refractive index mu and angle A is placed in the minimum deviation position। हमारे पास एक प्रिज्म है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एंगल ए है, मिनिमम डेविएशन पोजीशन में ये प्लेस्ड है। ओके, if angle of minimum deviation is A, then the value of A in terms of mu is, वही क्वेश्चन है। A इक्वल टू डेल्टा m बोला है और आपको ऑलरेडी पता है म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा m बाई 2, मतलब बेसिकली if you want me to increase step तो sin of I upon sin of R1, but then of course you know I is equal to A plus delta m by 2 and R1 is equal to A by 2, therefore you will write, और यहाँ पे एक चीज अभी कर देता हूँ, I इक्वल टू A प्लस A बाई 2, क्योंकि डेल्टा m की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, तो ये 2A बाई 2 आ जाएगा, मतलब I इक्वल टू A आ जाएगा। ओके, और इससे भी एक शॉर्टकट बताता हूँ। हमने अभी ये सॉल्व किया था यहाँ पे, लुक हियर, म्यू इक्वल टू ये सॉल्व किया था हमने, है ना। सिर्फ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने रूट टू सब्स्टिट्यूट कर दिया, नहीं करता तो म्यू, यहाँ पे भी म्यू, यहाँ पे भी म्यू, तो अल्टीमेटली आखिरी तक म्यू, तो आखिरी तक म्यू मतलब ये म्यू आता। तो if you remember, okay, if you don't remember I'll do it for you, but you need to remember now। आपको याद होना चाहिए म्यू इज इक्वल टू 2 cos ऑफ A बाई 2 आता है फॉर मिनिमम डेविएशन कंडीशन। याद है तो ठीक है, नहीं तो you will have to solve this। तो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ I, बट I आ गया A अपॉन साइन ऑफ R1, बट R1 है A बाई 2, फिर आप बोलोगे म्यू इज इक्वल टू 2 साइन A बाई 2 इंटू कॉस A बाई 2 हाफ एंगल फॉर्मूला। जिन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता, जो लेट एडमिशन है, लास्ट मंथ आई हैव कंडक्टेड अ स्पेशल लेक्चर ऑन मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड टू डू फिजिक्स, वो हर एक बैच में अपलोड किया है, आपके बैच में भी अपलोडेड है, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट।
उसमें मैंने सारे का सारा ट्रिग्नोमेट्री जो रिक्वायर्ड है वो करवाया है, इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला आइडेंटिटीज. सो वापस कैंसिल. therefore mu is equal to 2 cos of a by 2. as I told you कि ऐसा ही आएगा. ओके, एनीवेज, तो अब आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है वैल्यू ऑफ a इन टर्म्स ऑफ म्यू. तो सबसे पहले आपको मिल गया ये म्यू बाय 2 इक्वल टू कॉस ऑफ a बाय 2. तो a बाय 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ म्यू बाय 2. मतलब a इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स म्यू बाय 2. ऑप्शन नंबर सी. तो ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है बेसिकली. अगर आपको ये याद रहता तो फिर 2 स्टेप्स 3 स्टेप का काम था. नहीं याद रहेगा तो फिर आपको पूरा ही करना पड़ेगा. तो यू हैव टू फाइंड अ वे आउट ऑफ फॉर रिमेम्बरिंग थिंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉयलेट and red light are 1.54 and 1.52 respectively. If the prism angle is 10 degree, the angular dispersion is. So now we are entering into new domain. देखो ऐसा है, हमने अभी तक सिर्फ प्रिज्म ऐसा हमने बोला. अब there are certain things that you need to know. एक, what is thin prism? Thin prism is a prism with angle of prism A less than or equal to 10 degree. तो जब प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म जब लेस देन 10 डिग्री होता है उसको थिन प्रिज्म बोलते हैं. थिन प्रिज्म. और थिन प्रिज्म के केस में you get a formula which is delta equal to a mu minus 1. ये कहाँ से आया? तो ये प्रिज्म फॉर्मूला से ही आता है. इट कम्स फ्रॉम प्रिज्म फॉर्मूला ओनली. अगर आपको नहीं पता कैसे आया तो मैं पहली बार बता देता हूँ. तो म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m बाय 2 इंटू साइन ऑफ a बाय 2. ये था आपका प्रिज्म फॉर्मूला फॉर थिन प्रिज्म. अभी थिन प्रिज्म मतलब a स्मॉल. फॉर थिन प्रिज्म a इज स्मॉल. अगर a स्मॉल है तो साइन ऑफ a प्लस डेल्टा n by 2 you can write down approximately equal to a plus delta m by 2. क्यों? क्योंकि for small angle sin theta is approximately equal to theta. ये आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है. You have learned this in basic trigonometry. और मैंने भी जो मैथमेटिक्स का लेक्चर की बात कर रहा था उसमें मैंने साइन सीरीज कॉस सीरीज के बारे में मेंशन किया है. तो ये साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा कैसे आता है ये भी उसमें मेंशन है. तो ये अगर थीटा है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा फॉर स्मॉल ए. क्योंकि ए स्मॉल तो डेल्टा एम ऑटोमेटिकली स्मॉल. क्यों स्मॉल ऑटोमेटिकली? अभी अभी आपने देखा आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम. तो जो रिलेटेड तो सब स्मॉल जाता है. तो basically you have a is equal to I plus e minus delta. तो a small तो ये भी small आ जाता है. Okay, so in any case you should know this. For thin prism, sin of a plus delta m by 2 is approximately equal to a plus delta m by 2. Also, sin of a by 2 is approximately equal to a by 2. Therefore, you will write mu is equal to a plus delta m by 2 upon a by 2. 2 cancel out. मतलब आपको मिलेगा mu a is equal to a plus delta m. Therefore delta m is equal to mu a minus a. Therefore delta m is equal to a common mu minus 1. But delta m ये मिनिमम डेविएशन में से एक वैल्यू है. याद रखो, एक ग्राफ बताया था मैंने. I just told you about minimum deviation angle.
डेल्टा एम ये मिनिमम डेविएशन था, मतलब डेविएशन एंगल का मिनिमम वैल्यू था, लेकिन है तो पर्टिकुलर वैल्यू ना। जैसे अभी गर्मी के दिन है, सुबह टेम्परेचर होता है 30 डिग्री मान लो, दोपहर में 45 हो जाता है ना। तो 30 डिग्री हो या 45 हो, है तो टेम्परेचर ही, सिर्फ 30 क्या है, मिनिमम टेम्परेचर का वैल्यू है। वैसे ही डेल्टा एम ये एंगल ऑफ डेविएशन का एक वैल्यू है, तो उसको डेल्टा लिख सकता हूं मैं। तो थिन प्रिज्म के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कब? एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री। नॉर्मली 10 डिग्री के ऊपर प्रिज्म को थिन नहीं माना जाता। यू शुड नो दिस, ओके। तो यू हैव टू नो दिस पर्टिकुलर थिंग, आपको ये पता होना चाहिए। अब एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। सो व्हाट इज एंगुलर डिस्पर्शन? सबसे पहले तो व्हाट इज डिस्पर्शन, दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो। तो सबसे पहले तो आपको डिस्पर्शन ही पता होना चाहिए कि डिस्पर्शन होता क्या है बेसिकली। सो लेट्स सी व्हाट इज डिस्पर्शन। जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुक जाओ। ओके, सो डिस्पर्शन क्या होता है? यू हैव अ प्रिज्म, अभी मैं जानबूझ के थोड़ा थिक प्रिज्म दिखा रहा हूं जस्ट टू टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्शन, नहीं तो नहीं समझेगा। डिस्पर्शन का बेसिक मतलब ये होता है ब्रेकिंग व्हाइट लाइट इनटू कंपोनेंट्स। व्हाइट लाइट मतलब इट हैज 7 कलर्स विबग्योर, उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, दैट इज डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन, अभी दिस इज प्रिज्म, हमारे पास ये व्हाइट लाइट है, ये ओरिजिनल डायरेक्शन हो गया व्हाइट लाइट का। होता क्या है, यू हैव लर्न बेसिक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ये बताया था दैट refractive index is speed of light in vacuum to that of medium। मतलब जब भी एक वेव मीडियम चेंज करता है तो उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, उसका स्पीड चेंज होता है, ओके। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एक फॉर्मूला में इफ यू रिमेंबर ऐसा भी आया था, C upon n lambda, because नीचे speed of light in medium v and v is n lambda। मतलब mu refractive index is inversely proportional to lambda। refractive index of a given material is proportional to 1 by lambda। मतलब अलग अलग कलर के लिए, अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन I बाय साइन R। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहाँ पे सब के लिए सेम, ये व्हाइट लाइट है, 7 कलर है इसके अंदर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन साइन आर ये साइन आई बाय म्यू है, और म्यू वेवलेंथ के साथ रिलेटेड है, मतलब साइन आर इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू, बट म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्बडा, मतलब साइन आर इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और आर क्या डिसाइड करता है कि रे कितने से बेंड होगा, हाउ मच विल द रे ऑफ लाइट बेंड आफ्टर गोइंग इनसाइड। ओके, तो व्हाट आई विल डू इज मैं नया पेज ही ले लेता हूँ, इट विल बी बेटर। तो व्हाट इज हैपनिंग, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। What do we know? We know refractive index is inversely proportional to lambda. We know prism formula. Therefore, you have sin R is equal to sin I by mu. But I तो constant होगा, क्योंकि जब लाइट ने एंटर किया तब लाइट अलग अलग कंपोनेंट्स में स्प्लिट नहीं हुआ था,
When the light entered, it was a single unit, single entity. सातों कलर एक बीम में थे. And now you can see from here that sine of R is angle of refraction. कितने amount से light bend होगा is proportional to 1 by mu, but mu is proportional to 1 by lambda. मतलब sine R is proportional to lambda. तो जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना ज्यादा बेंडिंग, ऐसा आप बोल सकते हो. ओके, तो इन एनी केस मैं ज्यादा डिटेल्स में जा नहीं रहा हूं. आई डोंट वांट टू गो इनटू मच डिटेल्स बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच वाज लेफ्ट फॉर यू टू गो थ्रू, क्योंकि आपको जो है मैंने असाइनमेंट ही दिया था दैट यू हैव टू गो थ्रू. इन एनी केस ये इक्वेशंस भी चेक करना आपका काम है. इट्स नॉट माय जॉब, यू हैव टू चेक. जस्ट टू टेल यू कि क्या होता है. सबसे ज्यादा बेंडिंग, देखो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, इसलिए आपको चेक करना है. यू हैव टू चेक. सबसे ज्यादा बेंडिंग होता है वॉयलेट कलर का. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू टू चेक. ओके, यू हैव टू चेक. सबसे ज्यादा बेंडिंग होता है वॉयलेट कलर का. सबसे कम वेवलेंथ है. ओके, सबसे कम बेंडिंग होता है रेड कलर का. In reality, I should not be showing it like this, क्योंकि यहाँ पे आया आपका वॉयलेट कलर, फिर यहाँ पे आने के बाद वापस से बेंड होगा. इट विल बेंड अगेन, इट विल बेंड अगेन, समथिंग लाइक दिस. रेड कलर भी ऐसा आया एंड इट विल बेंड मोर और लेस लाइक दिस. तो this angle is angle of deviation for red, and this particular angle here is angle of deviation for violet. और ये जो angle बना between red and violet, delta V minus delta R, that is called as angular dispersion. The angular separation between two extreme colors of a dispersed beam. दो extreme color Vib V violet, Gyor R red. तो extreme color में जो angular separation होता है, that is nothing but angular dispersion. Okay, so delta V minus delta R is angular dispersion. This is something you need to know. अब हमको पूछा angular dispersion है. Delta equal to A into mu minus 1. ओके, आपका एक्चुअली सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा. मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट रिपीट करके दिया आपको. तो डेल्टा वी क्या आएगा. अभी प्रिज्म के लिए प्रिज्म बना ले तो बना लिया. प्रिज्म का ए तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग नहीं होगा ना. ऐसा होगा क्या कभी हमने एक प्रिज्म बनाया, थिन प्रिज्म, तो ये एक प्रिज्म हो गया. रेड कलर के लिए एंगल अलग है और वॉयलेट कलर के लिए एंगल अलग है. ऐसा नहीं होता है. तो A will remain A. सिर्फ चेंज क्या होता है, तो चेंज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो रेड कलर के लिए आपको आएगा mu r minus 1. तो एंगुलर डिस्पर्शन इज डेल्टा V minus डेल्टा R as I explained just now. तो ये आपका आएगा A mu V minus 1 minus A mu R minus 1. तो A कॉमन mu V minus 1 minus mu R minus minus plus 1. So this will be A into mu V minus mu R. Okay, तो in reality आपका जो solution है इस क्वेश्चन का, it is not even one step answer. मतलब ओरल है ये बेसिकली. क्यों? क्योंकि if you remember, अगर आपको ये पता होगा कि डेल्टा V माइनस डेल्टा R एंगुलर डिस्पर्शन इज A, म्यू V माइनस म्यू R, खत्म हो गया क्वेश्चन. व्हाट इज म्यू V? 1.54. व्हाट इज म्यू R? 1.52. 1.54 माइनस 1.52 0.02 into 10 डिग्रीज. क्योंकि A की वैल्यू 10 है. 1.54 माइनस 1.52, तो 0.02 into 10 is 0.2. ऑप्शन नंबर बी.
तो इन रियलिटी इतना है आपका सॉल्यूशन. Okay, I just told you theory concept because I don't know how many of you have went through all the lectures. तो बताना जरूरी था. So this is how you can solve. Easy, easy, very easy. Next question. A thin prism with angle 6 degree made from glass of refractive index 1.54 is combined with another thin prism P2 of refractive index 1.72 to produce dispersion without deviation. Dispersion without deviation. The angle of prism P2 is. अब ऐसा है, in one of the theory lectures, I have covered two different topics in relation with combination of prisms. तो आप दो प्रिज्म को कंबाइन करके दो डिफरेंट टास्क अचीव कर सकते हो. उसमें से एक है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन और एक है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन. तो मैं रफ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट क्या है. वो एक प्रिज्म है ये. I will just draw first. I will just draw a parallelogram initially. Normally crown and flint glass का combination होता है. अभी crown क्या? Crown is a glass with some refractive index. Flint is a glass with some refractive index. Ideally. तो ये दो प्रिज्म है. Okay, two prism. Now what happens is dispersion without deviation. मतलब ये यहाँ पे व्हाइट लाइट एंटर हुआ. ओके, ये ओरिजिनल डायरेक्शन दिखा रहा हूँ. मैंने लाइन को एक्सटेंड कर दिया जस्ट टू शो ओरिजिनल डायरेक्शन. व्हाइट लाइट जैसे ही प्रिज्म में एंटर करेगा, व्हाट हैपेंस इज डिस्पर्शन. ओके, डिस्पर्शन. तो ये कुछ ऐसा सीन बनने वाला है आपका. सॉरी फॉर दिस, दिस इज नॉट करेक्ट. इट इज समथिंग लाइक दिस. तो एग्जैक्ट डायग्राम आई एम नॉट वरिंग अबाउट. ऐसा कुछ होगा. ओके, समथिंग लाइक दैट. एनीवेज, अब इन्होंने बोला है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन. कॉन्ट्रडिक्शन. एंटर करते वक्त सिंगल बीम, जिसको आप व्हाइट लाइट बोल सकते हो. व्हाइट लाइट हैज ऑल द कलर्स फ्रॉम वायलेट टू रेड विब्योर. अभी जब एंटर ही सिंगल बीम हुआ, प्रिज्म में एंटर करने के बाद डिस्पर्शन हुआ. और जब बाहर निकला तो 7 कलर बाहर निकला. कौन कौन सा? विब्योर, रेड या वायलेट. बीच में इंडिगो होगा, ऑरेंज होगा, सब कुछ होगा. तो विदाउट डेविएशन तो किसके कंपैरिजन में मेजर करेंगे? इनकमिंग तो सिंगल वेव था, आउटगोइंग 7 वेव है, 7 कलर्स है. इनकमिंग सिंगल कलर, आउटगोइंग 7. किसका डेविएशन नहीं हुआ? मीन कलर का. मीन कलर येलो लिया जाता है यहाँ पे. अभी ऐसा मत समझना विब्योर. यहाँ पे मीन मतलब मिडल वैल्यू नहीं होती. नहीं तो बोला कि ग्रीन मिडल में है फिर हम येलो क्यों ले रहे हैं. ये वेवलेंथ डिपेंडेंट होता है. वेवलेंथ का मीन देखते हैं हम लोग. रफ अप्रोक्सीमेटली येलो इज टेकन टू बी मीन कलर. ओके, तो अब ऐसा है कि इनकमिंग सिंगल कलर था, सिंगल रे था, सिंगल डायरेक्शन था, आउटगोइंग 7 डायरेक्शन है. तो किसका डेविएशन नहीं हुआ? तो किसका डेविएशन नहीं हुआ? तो बात हो रही है येलो कलर की. So we are talking about yellow color here. So yellow color will go something like this, and then while going out from the other prism, yellow color goes parallel to original direction.
तो येलो कलर जो होता है वो ओरिजिनल डायरेक्शन को पैरेलल जाता है, पैरेलल, इट गोस पैरेलल टू ओरिजिनल डायरेक्शन, इसलिए हम बोलते हैं डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्शन हुआ, एक के मतलब व्हाइट लाइट के 7 कंपोनेंट्स हुए, लेकिन मीन कलर का डेविएशन नहीं हुआ, मीन कलर का और ओरिजिनल डायरेक्शन दोनों पैरेलल है। तो दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट। ओके, तो अभी ये येलो जो है थोड़ा सा वो पैरेलल दिख रहा है, तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो ठीक है कर देंगे चेंज, डजंट मैटर, इसको ऐसा ले लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब ऐसे केस में एक फॉर्मूला होता है, अभी इसका जो प्रिज्म का एंगल है ये है ए और इसका है ए डैश मान लो, तो ए डैश अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस म्यू वाई माइनस 1 upon mu y dash minus 1, dash corresponds to second prism and undashed unprimed is for first prism। तो ये फॉर्मूला है। आपको क्या पूछा है, एंगल ऑफ प्रिज्म P2, P2 प्रिज्म का एंगल A डैश पूछा है और P1 का एंगल A 6 डिग्री दिया है, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे A डैश इक्वल टू माइनस म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए, और म्यू वाई पहला प्रिज्म जो है उसका म्यू 1.54 है, तो माइनस ऑफ 1.54 माइनस 1, और दूसरे का 1.72 है, माइनस 1 इंटू ए 6 डिग्री। तो यू हैव टू सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर मिलेगा तो ये आपको मिलता है अराउंड 4 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स के आसपास, क्योंकि सॉल्व ही करना है, अब तो कुछ है नहीं, सो यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस, बिकॉज़ दिस इज माइनस 0.54 अपॉन 0.72 इंटू 6, तो मतलब माइनस 54 बाय 72 इंटू 6, तो ये आपका आ जाएगा 1 जा 5 6 जा, ओके, तो 6 1 जा 6 8 एंड समथिंग, so you have to solve this, so solve करो जो भी आएगा, I am not going to do exact answer, whatever it is please solve, तो जो भी आने वाला है I am not worried about final answer, but it turns out to be around 4 degree 30 minutes, so calculation का part I will leave it on to you, this is how you are supposed to calculate, okay, तो ये formula पता होना चाहिए, this is for dispersion without deviation, this is in context of combination of two prism, एक के बाद दूसरा प्रिज्म, जैसे लेंस में एक के बाद दूसरा लेंस लगाया था, वैसे ही एक के बाद दूसरा प्रिज्म लगाया, तो क्या क्या मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिन प्रिज्म, मतलब डेल्टा इक्वल टू a mu minus 1 यूज कर सकते हो, is dipped in water, then minimum deviation with respect to air by it will be, तो ऐसा है डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस 1 यूज कर सकते हो। डेल्टा अभी ऐसा है कि हमारे पास प्रिज्म था, वो प्रिज्म हमने पहले एयर में रखा हुआ था, उसके बाद हमने उसको वाटर में डिप कर दिया, तो जब एयर में रखा था तो डेल्टा ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, क्योंकि प्रिज्म बनता है ग्लास से, विद रिस्पेक्ट टू एयर माइनस 1, delta deviation angle in water is a refractive index of glass with respect to water minus 1। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है मिनिमम डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मिनिमम डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब आपको पूछा है डेल्टा W बाय डेल्टा ए। तो सबसे पहले आपको पूछा क्या है वो समझना जरूरी है, ओके, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट फिर प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पूछा क्या है पहले, तो आपको पूछा है डेल्टा W बाय डेल्टा ए, तो हो गया ए म्यू जी W माइनस 1 अपॉन ए म्यू जी ए माइनस 1, ए कैंसल, दिस इज इक्वल टू refractive index of glass upon refractive index of water minus 1 upon refractive index of glass upon refractive index of air minus 1, refractive index of glass is 3 by 2 upon 4 by 3 minus 1,
अपॉन 3/2 माइनस 1। तो इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास आएगा 9/8 माइनस 1 अपॉन हाफ, क्योंकि 3/2 माइनस 1 इज हाफ। तो 9/8 माइनस 1 इज 1/8 अपॉन 1/2, दैट इज 1/4। तो आ गया ऑप्शन नंबर बी। दिस इज हाउ यू are supposed to solve this particular question. Okay. Next question. The respective angles of flint and crown glass prisms are A dash and A. They are to be used for dispersion without deviation. अभी भी देखा था. Then the ratio of their angles A dash to A will be. So अभी हमने देखा था रिस्पेक्टिव एंगल्स ऑफ फ्लिंट, ये इसको फ्लिंट बोलते हैं, इसको क्राउन बोलते हैं। पहला प्रिज्म क्राउन है, दूसरा फ्लिंट है। ओके, हमने अभी देखा A dash by A for to produce dispersion without deviation। अभी हमने फॉर्मूला देखा, this formula we are talking about। okay, so we know formula, just now we saw कि फॉर्मूला क्या आता है म्यू वाई माइनस 1 अपॉन म्यू वाई डैश माइनस 1। ऑप्शन नंबर ए खत्म, डन, we are done with this question। next question, for a glass prism the angle of minimum deviation is equal to angle of prism, the angle of prism is। अभी हमने सॉल्व किया था, ये सिर्फ यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज है। तो कहीं तो एक क्वेश्चन था जिसमें a इक्वल टू डेल्टा हुआ था, a इक्वल टू डेल्टा ऐसा बोला गया था। समवेयर दो क्वेश्चन सॉल्व हुए, हम लोग वापस नहीं करने वाले सॉल्व। दिस इज द वन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये वही क्वेश्चन है। तो आपके पास ये फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली यूज कर सकते हो आप, म्यू इक्वल टू 2 cos of A/2। so you can directly solve using that, म्यू इक्वल टू 2 cos of A/2। देखो अगर आपको याद आ गया कि जनरल फॉर्मूला क्या है प्रिज्म का, साइन ऑफ A प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन ऑफ A/2। ये है अंडर मिनिमम डेविएशन, और उसमें भी अगर A और डेल्टा m दोनों इक्वल हो गए तो आपके पास आ जाता है 2 cos of A/2। अगर इतना याद होगा आपको, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। अच्छा, तो फिर डायरेक्टली हम लिखेंगे 2 cos of A/2। म्यू की वैल्यू √3 है, 2 cos of A/2, तो √3/2 cos of A/2। √3/2 cos के केस में आती है 60 डिग्रीज पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज एट 60 डिग्रीज, क्योंकि cos नहीं 30 डिग्री पे, साइन ऑफ 60 इज √3/2। ओके, तो दिस विल बी 30 डिग्रीज, तो 30 डिग्री इक्वल टू A/2 है ना, बिकॉज √3/2 ये cos 30 होता है, cos 30 इक्वल टू cos A/2, मतलब 30 इज इक्वल टू A/2, मतलब A इज इक्वल टू 60। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ray of light passes through an equilateral prism A60, refractive index 1.5 बोला है, such that angle of incidence I is equal to angle of emergence E, angle of incidence is equal to angle of emergence, and the latter मतलब जो बाद में मेंशन किया, मैंने बोला रोल नंबर 1 and 2, लैटर मतलब 2। ओके, तो जो मैंने लैटर वर्ड मतलब जो बाद में प्रोनाउंस किया, जो बाद में मेंशन किया, तो उन्होंने क्या बोला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस एंड लैटर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब बात तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, I इक्वल टू E इक्वल टू 3/4 ऑफ A, तो एक ही बात है ना, I इक्वल टू 3/4 ऑफ A।
एंगल ऑफ डेविएशन इज, आपको एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करने के लिए बोला है. दिस इज अ जोक. ओके, दिस इज अ जोक. इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हमको पता है I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, बट I इज इक्वल टू ई है, therefore E प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, therefore 2E is equal to a plus delta, but E is 3/4 of A, 3/4 of A plus delta, मतलब 1 जा और 2 जा, मतलब 3/2A minus A is equal to delta, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू A/2, क्योंकि 3/2 minus 1 is half, और A 60 डिग्री बोला है, इक्विलैटरल प्रिज्म है, तो 30 डिग्री आपका आंसर आ गया. डन. ऐसा आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन. देयर इज नथिंग एट ऑल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Refractive index of a prism for a monochromatic wave is √2. Refractive index is √2. Refracting angle मतलब 60 डिग्री, A की वैल्यू दी है. For minimum deviation, angle of incidence will be, minimum deviation हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन. म्यू इज इक्वल टू साइन I बाय साइन R1, बट R1 को आप लिख सकते हो A/2. मिनिमम डेविएशन है इसके लिए साइन ऑफ A/2. हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, रिपीट हो गया है तो मैं रिपीट करवा रहा हूँ. इसका आंसर 45 डिग्री आता है. तो √2 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन 60/2, दैट इज साइन 30. √2 साइन I साइन 30 इज हाफ, तो ये आ जाएगा आपका 1/√2 इक्वल टू साइन I. पूरा सॉल्व करने के बाद तो I इक्वल टू 45. ये आज हमने पहले किया है, वापस रिपीट हो गया था, so it doesn't matter. Okay, next question. Angle of minimum deviation for prism is 40, angle of prism is 60. The angle of incidence in this position will be, so I will want you to do this as an assignment, क्योंकि again वही formulas use करने हैं आपको. You're supposed to use the same formulas over and over again, so I will want you to do it by yourself. खुद से solve करो. 1 2 3. Next question. The angle of minimum deviation measured with a prism is 30 and angle of prism is 60. The refractive index of prism is, क्या क्या बोला है? Angle of minimum deviation आपको दिया है 30, angle of prism आपको दिया है 60 और refractive index पूछा है. Minimum deviation वर्ड यूज हुआ तो mu इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा m/2 यूज कर सकते हैं, अपॉन साइन A/2 यूज कर सकते हैं. ओके, तो म्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमको फाइंड ही म्यू करना है. साइन ऑफ A 60, ये 30, ओके, बाय 2 अपॉन साइन ऑफ 60/2, तो ये आ जाएगा आपका साइन ऑफ 60 प्लस 30, 90/2 इज 45 upon sine 30. This is 1/√2, this is 1/2, so this is 2/√2, that is just √2. Option number A. खत्म हो गया क्वेश्चन. All right, so this is how you are supposed to solve this particular question. अगला, a ray of light passes through an equilateral glass prism. 60 degree is A. In such a manner that angle of incidence equal to angle of emergence. अभी angle of incidence और angle of emergence इक्वल है और बोला है कि ये इक्वल है 3/4 to that of angle of prism. मतलब अल्टीमेटली जो क्वेश्चन हमने थोड़ा टाइम पहले सॉल्व किया था, दिस वन, वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से बोला गया है. दैट्स इट, सिर्फ अलग तरीके से बोला गया है. So I hope you will be able to solve. Angle of deviation यहाँ पे भी 30 डिग्री आता है, so you can just solve this by yourself. Okay, so it's the same question asked in a different way. So same question था, right? So what I will do is
आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। और जो कुछ इजी क्वेश्चंस है मैं आज जो नोट्स अपलोड करूंगा उसी में उस पे आगे मैं असाइनमेंट लिख के अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अब यू सी 4 फॉर्मूला से ऊपर कुछ है ही नहीं यहाँ पे, 4-5 टच है खत्म। तो एंड ऑफ प्रिज्म, एंड ऑफ डिस्पर्शन, एंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। हमने सिर्फ प्रिज्म के कॉम्बिनेशन में डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन देखा है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन वो थियरी में मैंने कवर किया है, तो उसका फॉर्मूला एक बार देख लेना। व्हाट इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, वो आप एक बार देख लेना थियरी में। तो प्रिज्म थियरी मोर और लेस खत्म। नेक्स्ट 2 लेक्चर में आई विल ट्राई टू रिपीट सम क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, एंड देन वी विल डू ऑफ कोर्स वेव ऑप्टिक्स एंड जो भी टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के कुछ क्वेश्चंस है वो। तो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे।